Hello students. So again we are here for the part 2 of chapter rectilinear figures. As we have done in the previous part that what is the polygon? What is the regular polygon? What is the difference between polygon and regular polygon? As we have done also the sum of interior angles, sum of exterior angles of a polygon, and we have studied that in the regular polygon all the sides are equal, all the angles are equal, whether the angle is interior one or whether the angle is exterior. All the interior and all the exterior angles are equal in the case of regular polygon. We have studied that. Now, today we are going to study our next topic, quadrilateral. Quadrilaterals. First of all, what is a quadrilateral? Quadrilateral, closed plane figure bounded by four sides, four lines, four straight lines. Any closed plane figure which is bounded by a straight line. For example, rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium, any closed plane figure which is bounded by four lines is known as quadrilaterals. Now, quadrilaterals are further of 5 types. The one is trapezium. Trapezium is the closed plane figure bounded by four sides. See, in this figure, A, B, C, D is a trapezium. Property of trapezium is, in this trapezium, only one pair of opposite sides are parallel. And trapezium, further, one more type of trapezium is there, that is known as isosceles trapezium. How can we identify that which one is isosceles trapezium? See, if the non-parallel sides, here AD and BC are non-parallel sides, they are not parallel to each other. If these non-parallel sides are equal in length, then we can say this trapezium is isosceles trapezium. This is the property of trapezium. Now come to the next one, parallelogram. So many of you are familiar with this term parallelogram, or you can use short form of this parallelogram. You can draw two parallel lines and write GM with it. This is parallelogram. In this case, A, B, C, D is a closed plane figure bounded by four sides. But the property of parallelogram, in this case, in the case of parallelogram, opposite sides are parallel and equal. Opposite sides, AB and DC, these are the opposite sides. AB is parallel to DC. AD and BC, these are the opposite sides. These are parallel and equal. So, in the case of parallelogram, opposite sides are parallel and equal. One more property is there. Opposite angles are also equal. Like, angle A is opposite to angle C, then these two angles are also equal. Angle B is equals to angle D. One more important property is there, that is consecutive angles are supplementary in the case of parallelogram. For example, angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle A plus angle B. Angle B plus angle C is equals to 180 degree. Angle C plus angle D 180. D plus A. That means consecutive angles. Continuation. Consecutive angles are supplementary in the case of parallelogram. Now come to the next one. Next is rectangle. So many of you are familiar with this, that in the case of rectangle, opposite sides are also parallel and opposite pair are also equal. For example, AB is equals to CD and BC is equals to AD. We all know this, and each angle at the vertex, that is 90 degree. Angle A is 90, B, C, D, all are 90. AC is the diagonal, BD is the diagonal. In the case of rectangle, diagonals are equal. AC is equals to BD. And one more, diagonals bisect each other. अगर हम कह रहे हैं AC और BD diagonals हैं जो कि meet कर रहे हैं at point O, then AC को bisect किया BD ने at point O, that means OA is equals to OC, OD is equals to OB.
Diagonals are equal. Diagonals bisect each other. Come to the next one. Next is rhombus. Rhombus. बच्चे A, B, C, D is a rhombus. These lines, opposite lines are parallel to each other. AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. But in this case, all the sides are equal. AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. We can say AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. All the sides are equal. One more property is there, that is in a rhombus, in a rhombus all the sides are equal. And one more property, that is if AC and BD are the diagonals of the rhombus, then these diagonals bisect each other at 90 degree. 90 degree right angle. That means अगर ये bisect कर रहे हैं at point O, AC और BD अगर bisect कर रहे हैं at point O, then angle AOB is 90 degree. Because in the case of rhombus, diagonals bisect each other at 90 degree. For a square, come to the next one, next quadrilateral, square. Again, square is a quadrilateral. Square is a quadrilateral formed by using 4 lines. But in this case, one more thing is there. We all know that all the sides of square are equal. AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. T. If AC is the diagonal and BD is the diagonal, then according to the property of square, diagonals are also equal. AC is equals to BD. AC is equals to BD. Diagonals are equal. And one more important thing, that these diagonals AC and BD bisect each other at 90 degree. Right? Now, come to the next topic. There are so many important theorems related to this parallelogram, rhombus, rectangle. There are so many important theorems. The first one is, in a parallelogram, both the pairs of opposite sides are equal. Let us suppose I am having a parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. Then both the pairs of opposite sides, this one AB is equals to DC and AD is equals to BC. In a parallelogram, both the pairs of opposite sides are equal. That is AB is equals to DC and AD is equals to BC. Next, the important theorem. In a parallelogram, both the pairs of opposite angles are equal. Angle A is equals to angle C. Both the pairs of opposite pairs, both the pairs of opposite angles. Opposite angles, angle A is opposite to angle C, angle B is opposite to angle D. Both the pairs of opposite angles are equal. That means angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. According to these two theorems, the opposite sides of parallelogram are equal. That means AB is equals to DC and AD is equals to BC. And opposite angles are also equal. A is equals to C and B is equals to D. See the next one, the third one. If one pair of opposite sides of quadrilateral, let us suppose in the question it is given to you that ABCD is a quadrilateral, only one pair is opposite and parallel. हमने पढ़ा पैरेललोग्राम में दोनों जो पेयर्स हैं, बोथ द पेयर्स है ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, AB DC के, BC AD के. लेकिन अगर दिया है क्वेश्चन में one quadrilateral is there and one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel. That means if ABCD is a quadrilateral and only one pair, AB is parallel to DC, AB is equals to DC. पैरेलल भी यही है, AB और DC इक्वल भी यही है, सिर्फ ये हमें गिवन है कि AB is parallel to DC and AB is equals to DC. Then तब भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम. कैसे होगा वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम? सी, हम लोगों ने
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, हमने उसकी 5 एग्जाम पढ़ी, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, RHS पढ़ी हमने, साइड 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 पढ़ी, एंगल एंगल, ठीक है, ये चीजें पढ़ी। अब आओ इधर ABCD, अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल्स टू DC। मतलब अगर मैं AC एक डायगोनल बनाती हूँ, AC अगर एक डायगोनल बनाती हूँ तो मेरे पास 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। कौन से? इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, 2 triangles are there। ठीक, अब ADC, ABC, इसमें AB और DC इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू DC, ये उन्होंने गिवन दे दिया कि 1 पेयर इज इक्वल। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AC, AC इक्वल है AC के, बिकॉज इट इज द कॉमन साइड, दोनों में सेम चल रही है, सो AC इज इक्वल्स टू AC। अब या तो थर्ड साइड AD इज इक्वल्स टू BC दिया होता तो हम कहते कि हमारा प्रूव हो गया कि AD इज इक्वल्स टू BC आ गया, हम सॉल्व कर देते। ऐसा नहीं है, AD इज इक्वल्स टू BC हमें नहीं दिया। ठीक, अब या तो कोई एंगल मिल जाए, हमें इतना पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पे AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल करके। अब 3 चीजें चली, साइड, एंगल, साइड, तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड इफ दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये वाली जो रिमेनिंग साइड्स है, CPCDC क्या कहती है, AD मस्ट बी पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC, तो हम कह देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, यहां तक क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास each diagonal of a parallelogram bisects the parallelogram। अगर हम लेके चल रहे हैं कि दिस इज द पैरेललोग्राम, लेट अस सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, चाहे हम AC की बात करें या BD की बात करें, दैट डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। हमने पिछले में प्रूव किया कि बोथ द ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ABC। ठीक, यहाँ पे तो उन्होंने कह ही दिया पैरेललोग्राम, हम चाहे तीनों साइड्स बता दें कि AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC एंड AC कॉमन, बाय SSS हम बता दें कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब जितना एरिया इस ट्रायंगल का है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का। पर ये दोनों ट्रायंगल सम अप होके क्या बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल सम अप होके बने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। दोनों ट्रायंगल सम अप होके क्या बन रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इट मींस एक ट्रायंगल का एरिया वो क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं अपने पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम है मेरे पास ABCD, I am having 2 diagonals AC and BD of this parallelogram. Diagonals bisect each other. अगर ये diagonals meet कर रहे हैं किसी point O पे, then you have to learn this result that diagonals of a parallelogram bisect each other. That means if they meet at O, AO is equals to OC and BO is equals to OD. This is the next important theorem that diagonals of the parallelogram bisect each other. Proofs are not required, but you have to memorize these. You have to learn these important theorems. Come to the next one. Rhombus is a special parallelogram. Rhombus is a special parallelogram which
rhombus is a special parallelogram whose diagonals meet at right angles. rhombus हमने पढ़ा, rhombus क्या है? एक तरह से rhombus भी स्क्वायर हुआ, बस फर्क यहाँ पे पड़ा कि स्क्वायर में सारा जो साइड्स हैं वो आपस में एंगल बनाती हैं 90 डिग्री, लेकिन rhombus में साइड्स इक्वल जरूर होती हैं लेकिन वो 90 डिग्री पे मीट नहीं करती, उसके वर्टेक्स एंगल हमें 90 डिग्री नहीं मिलते. ठीक है, रोम्बस में ये साइड्स पैरेलल भी होती हैं, पैरेलल भी चलती हैं, और ये साइड्स ऑपोजिट साइड्स, नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स, ऑल द साइड्स इन द रोम्बस दैट आर ऑल्सो इक्वल. AB is equals to CD is equals to, sorry, AB is equals to BC is equals to CD is equals to D. All the sides are equal. ठीक है, ये हमने पढ़ा. अब रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स जो मीट करते हैं, अगर मैं कहूं AC और BD, मेरे पास दो डायगोनल्स हैं और ये दोनों जिस पॉइंट O पे मीट करते हैं वहां के एंगल को दिया गया है नाम 90 डिग्री. याद रखना है बच्चे. इन अ रेक्टेंगल diagonals are equal. Let us suppose we are having a rectangle ABCD. Then the next theorem is, in a rectangle the diagonals are equal. AC is equals to BD. ठीक, diagonals are equal. And the last one, in a square the diagonals are equal and meet at right angles. If we consider this ABCD as a square, then in this one AC is equals to BD, and these diagonals meet at point O at angle right angle. Right angle means 90 degree. So, beta, these are the important theorems related to the chapter rectilinear figures, related to the topic quadrilaterals. ठीक, these are the important theorems. लर्न करना है इन थ्योरम्स को अच्छे से. ठीक, अब आओ नेक्स्ट कि इन थ्योरम्स का यूज करना कैसे. आपने पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट को अच्छे से किया हुआ है. ठीक है, हमने अभी थ्योरम्स की कुछ अच्छे से रिजल्ट्स किए, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इन सबको लेके. ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशन है. सी एग्जाम्पल नंबर 9 नजर आ रही है आपको बुक में. एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें क्या दिया उन्होंने, द गिवन फिगर शोज अ रोम्बस, द गिवन फिगर शोज अ रोम्बस ABCD. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw a rhombus in which all the sides are equal like the square but angles are not 90 degree. ठीक है, and opposite sides are also parallel. This is the rhombus in the given figure. This is the rhombus ABCD. We have to find the value of x and y. Find x and y. It is given that AB है आपके पास 3x plus 2. AD is equals to 4x minus 4. ज्वाइन किया गया है B and D को. This angle is 60 degree. ठीक है, and the value of BD is y minus 1. This is given to you. ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है द वैल्यूज ऑफ x and y. ठीक, वैल्यू ऑफ x and y कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट all the sides of rhombus are equal. All the sides are equal, ये चीज हमें पता है. If all the sides are equal, that means AB is equals to AD. This implies 3x plus 2. Value of AB 3x plus 2. Value of AD 4x minus 4. ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, और अगर हम सॉल्व करते हैं 4 इधर माइनस का है, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी ट्रांसपोजिशन करते हैं 4 की. ठीक है, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो उसका साइन हो गया पॉजिटिव. 4 plus 2 is equals to 4x minus 3x.
दिस इज 6 इज इक्वल्स टू x। ये तो आई हमारे पास वैल्यू ऑफ x दैट इज 6। हमें फाइंड आउट करनी थी एक्स भी और वाई भी। अगर तो y कहीं BC या BC के इक्वल होता, y-1 की वैल्यू BC या BC के इक्वल होती, हम कहते वो भी साइड्स है, ठीक है, हम इसके इक्वल कर देते, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ y बिकॉज x हमारे पास आ गया 6। बट हियर इन दिस केस द वैल्यू ऑफ y-1 इज ऑफ द साइड BD, ऑफ द डायगोनल BD। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्या पता है हमें कि these sides are also parallel. These sides are also parallel. And if AD and BC are parallel lines, then can I say that this AB, this acts as a transversal of these two parallel lines? AD और BC parallel lines हो गई और AB act कर रहा है as a transversal, and we all know that the co-interior angles, the sum of co-interior angles is equals to 180 डिग्री। ठीक, वही कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे। एंगल DAB, ठीक, DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या है, हमने अभी बोला को इंटीरियर एंगल्स, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल में जो एंगल बनाया उनका सम होता है 180 डिग्री। सो हमारे पास बना DAB प्लस ABC इज इक्वल्स टू 180। DAB की वैल्यू है मेरे पास 60 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस मीन्स एंगल ABC 60 उधर जाके हुआ माइनस 180 माइनस 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल ABC जो है वो बना 120 डिग्री। अब रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज, जो थ्योरम्स हमने पढ़ी, वी हैव टू यूज दैट थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज हियर, दैट द डायगोनल, ये जो डायगोनल है हमारे पास, द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स। जो डायगोनल है वो इस वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, लिखना है, बिकॉज इन द रोम्बस diagonal bisect angle at the vertex, angle at the vertex या angle of the vertex, जो भी आपने बोला। That means ये जो BD है, BD bisects angle ABC। If BD bisects angle ABC तो 120 का हाफ आएगा इधर 60 डिग्री। BD bisects एंगल ABC, दैट मीन्स एंगल ABD इक्वल होगा एंगल DBC के, जो कि इक्वल है हाफ ऑफ एंगल ABC, हाफ ऑफ 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। ठीक, ये चीज हमें पता लग गई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल नजर आ रहा है DAB एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो भी मुझे पता है। विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। और ये किस पे लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ADB, इस पे लगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ADB कितना है मेरे पास, ADB ये है DAB कितना है 60, ADB हम फाइंड आउट कर लेंगे। DAB है मेरे पास 60, प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया। ABD कितना है 60, उधर जाके ये भी माइनस हो गया। 60 120 माइनस कर दिया 180 में से, तो ये भी एंगल कितना नजर आ गया हमें, ठीक है। जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल बचा ट्रायंगल का वो भी कितना हो गया 60 डिग्री। अब बेटा एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल है,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB या ABD जो भी आपने कहना है, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। हम वो प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे कि सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, हम कह देंगे therefore 3x plus 2 that is अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं AB is equals to BD। That means 3x plus 2 इक्वल हो जाएगा y minus 1 के। ठीक है, x की बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 6, 3 6 था 18 plus 2 minus 1 इधर आके क्या हो गया plus 1। 18 plus 2 20, 20 plus 1 21। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ABCD था एक रोम्बस, जिसमें फाइंड आउट करनी थी हमने वैल्यू x और y। ठीक है, x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी कि रोम्बस की दोनों साइड्स रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने कह दिया कि इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू AB। हमने x निकाल दिया, 6 आ गई वैल्यू। और जब हम पहुंचे y फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले हमने पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट को यूज किया। फाइंड आउट किया हमने कि एंगल ABC जो है वो बन रहा है 120। और अगर एंगल ABC 120 बन रहा है, हमें ये भी पता है डायगोनल्स वर्टेक्स को डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को। तो 120 को डिवाइड किया तो 60 बन गया। अब एक ट्रायंगल के 2 एंगल 60 हैं, तो रिमेनिंग 1 भी 60 हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ट्रायंगल तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज सारे एंगल्स उसके 60 आ गए। अगर वो इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स हमने लिया कि AB इज इक्वल्स टू BD आ गया, तो हमने वैल्यूज इक्वल कर दी, x की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास y आ गया 21। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट come to the question number 2 of exercise 14b. See beta, it is given that in the figure given below, AM, this AM bisects angle A. Bisect कर रही है एंगल A को, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, सेम, इक्वल। ठीक, एंड DM लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को, मतलब एंगल MDA इक्वल चल रहा है MDC के। दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, प्रूव दैट एंगल AMD इज इक्वल्स टू 90। क्या प्रूव करना है हमने, एंगल AMD जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव कर रहे हैं हम लोग, एंगल AMD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये है हमारे पास प्रूव करने वाली टर्म। ठीक है, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो लिख देते हैं सबसे पहले गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स, बेटा मैंने अभी क्या यूज किया, मैंने अभी प्रॉपर्टी यूज की पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ABCD, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन उसकी प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। दैट मीन्स ये जो साइड AB है ये पैरेलल हुई DC के, ये दोनों साइड्स पैरेलल हुई, और ये जो लाइन सेगमेंट है मेरे पास AD, देखो जरा AD, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। इफ यू वांट टू राइट हियर ना दैट AB is parallel to DC and AD acts as a transversal, then you can write. Otherwise, if you don't want to write this one, you can directly write ABCD is a parallelogram. That means opposite sides are parallel and equal. ठीक, तो हम प्रूफ में बता रहे हैं, टू प्रूफ हमने लिख दिया, गिवन हमने लिख दिया, प्रूफ में हम क्या बता रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मोर ओवर हमने बताया था कि जो कंसेक्टिव एंगल्स हैं
ठीक है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। चाहे वो चीज बता दो, अदरवाइज नहीं ये सब बताना तो आप ये भी लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये चीज आप लिखते आ रहे हो, फेमिलियर हो इन चीजों से, इन वर्ड्स के साथ। को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ भी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल्स आपके साथ आपको फेमिलियर है, दैट्स व्हाई मैंने ये पॉइंट लिखा को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे पूरा एंगल ए, पूरे एंगल डी की वैल्यू मुझे पता थी, लेकिन इधर तो उन्होंने बोला ए एम बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ हाफ ऑफ ए की जरूरत है, डी एम बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ ऑफ डी की जरूरत है। अगर मैं इसको एंगल नाम दे दूं 1 और 2, बिकॉज मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, हम इसको लिखे एम ए डी, इसको लिखे एम डी ए, बहुत बड़ा नाम बन जाता है। मैंने नेमिंग कर दी अपने एंगल्स की, इसको दे दिया नाम 1 और इसको दे दिया 2, तो मेरे पास बना, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब लिख दो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्या मिल जाएगा हमें, एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके ये आ गया 90 डिग्री। अब हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए मैंने ले लिया ये एंगल 1, क्योंकि मुझे ए एम डी बताना है, मुझे ये वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रायंगल बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है ए एम डी में। अगर मुझे ट्रायंगल के दो एंगल्स मैंने लेट कर लिए, ठीक है, मतलब ये दो मुझे पता लग गए, तो इट इज इजी फॉर मी टू फाइंड आउट एंगल एम। द थर्ड वन, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कितना है मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो बन गया 90 डिग्री। कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सिर्फ पैरेललोग्राम की हमने डेफिनेशन ली, एंगल ए प्लस एंगल डी को 180 बताया क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, डिवाइड कर दिया 2 के साथ क्योंकि मुझे हाफ की जरूरत है। मैंने एंगल 1 और एंगल 2 का सम फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री। अब आ जाओ अपने ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल AMD we all know that all the angles of a triangle is equals to sum of that angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। अब हम यही लेके चले हैं, इन ट्रायंगल AMD एंगल 1 प्लस एंगल AMD प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। बेटा डिजिट मेंशन कर दीजिएगा, व्हाई दिस all sum of these three is equals to 180, just because of angle sum property। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री, हमने फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 1 में, प्लस 90 डिग्री, ये आ गया इक्वल 180। क्यों हुआ ये, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। 90 इधर प्लस है, जैसे ही हम इसको साइड चेंज करते हैं देन इट वुड बी एंगल AMD हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो देखो जरा क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कि एंगल AMD जो है वो 90 डिग्री है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज की, हमने क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की, पैरेललोग्राम्स की, हमने रेक्टेंगल्स की, स्क्वायर की, रोम्बस की, ठीक है। हमने देखा कि अगर हमें दिया हुआ है कि वो पैरेललोग्राम है और बता दिया है कि एंगल बाइसेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, जैसे साइड AM है, DM है, इन्होंने एंगल बाइसेक्ट किए हैं, तो हम एंगल AMD वो भी फाइंड आउट कर सकते थे। अगर हमारे पास रोम्बस की दो साइड्स इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल गिवन है, हमने वो भी वेरिएबल भी उसमें से फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है, हमें थ्योरम पता है कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। हमने ट्रायंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी, एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज की, हमने पैरेलल लाइंस वाले कंसेप्ट यूज किए कि अगर पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्स है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लर्न दीज theorems because these theorems are very, very important theorems. So thank you dear students.